Hello students, today we are going to start cyclotron. So sometime you need the highly energetic particle to disintegrate the atomic nuclei, and also we need the highly energetic particle for synthesize the material, and also we need this such type of the highly energetic particle in artificial radioactive element which are used in the magnetic field. तो ये जो हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल है ये आता कहां से है? फॉर दिस हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल वी यूज अ डिवाइस विच इज नेम्ड एज द साइक्लोट्रॉन, राइट? So you can say that cyclotron is a device which form the highly energetic particle. ठीक है, अब होता क्या है इसमें, ठीक है, किस तरह से ये बनाता है हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल? इन दिस वी टेक द heavy positive charge particle like proton, alpha particle, deuteron, and put into the highly frequency electric field and the strong magnetic field, and then it is made to move in this situation again and again such that it acquire the high energy, and you can say that it is getting acceleration again and again, and then it gets so much high energy which is used to carry the nuclear disintegration, right? So principle, you can say that principle of the cyclotron is a heavy positive charge particle. Heavy positive charge particle is made to move again and again in high frequency electric field and the strong magnetic field such that it accelerated again and again and acquire large amount of energy. Okay, let us see the diagram for the cyclotron. In this cyclotron we take the two Ds, D1 and D2, which are in semicircular shape, and these are hollow semicircular Ds, and these are made by the metallic. ठीक है, मेटल से ये बनी हुई होती है एंड होलो होती है, अंदर से होलो. ठीक है, सो वी यूज द टू semicircular Ds, D1 and D2, which are hollow inside and formed by the metallic, or formed by the metal, you can say. Then we supply the high frequency oscillator, या आप कह सकते हो we supply the electric field, क्योंकि इस high frequency oscillator से आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो? high electric field प्रोवाइड करोगे. We supply the high electric field by the highly frequency oscillator which are connected to these Ds, D1 and D2. आप देख भी सकते हैं, these are connected to the D1 and D2. And also we use the strong magnetic field by using the two electromagnet, north south. These are the electromagnet. Okay, so ये है इसकी setup. We have two Ds, one highly frequency oscillator and the two electromagnet which act as the north and the south pole. In this magnetic field represented by the cross which are into the plane. ये आपको बहुत बार समझाया गया है. जब हम क्रॉस का साइन यूज कर रहे हैं, it means the direction of the field is inside the plane or into the plane. ओके, तो यहाँ पर जो आपकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या है? इस तरह से इनसाइड, इनटू द प्लेन. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सपोज करो आपकी D2 जो है वो पॉजिटिव है एंड D1 इज नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव. इट मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहाँ पर इस डायग्राम में, वो किस तरह से रिप्रेजेंट हो रही है आपकी? बाय द पॉजिटिव टू नेगेटिव, या आप कह सकते हो कि D2 से D1 की तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं. ओके, एंड हियर वी यूज अ विंडो फ्रॉम विच हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल कम आउट फ्रॉम दीज प्लेट्स, and here we have a target which we want to disintegrate. ठीक है, so this is the full description or construction, you can say that. अब आपको
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हर चीज का पता, देन यू कैन एक्सप्लेन इट इजली. हाउ? हमें पता है इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर और इनसाइड द कंडक्टर वी हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड 0. ओके, एंड ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिलरेट द चार्ज पार्टिकल, राइट? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा? एक्सिलरेट करेगा. चार्ज पार्टिकल कहां रखा हुआ है? यू कैन सी बिटवीन द D1 एंड D2 देयर इज सम गैप. यहां पर क्या है? कुछ गैप है, और इस गैप में हमने यहां पर क्या रख दिया? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रख दिया. अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इसको एक्सिलरेट करेगा. ठीक है, और एक्सिलरेट किस तरफ करेगा? अलोंग इट्स एक्सिस. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ जा रही है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं. नाउ वी कंसीडर इफ D2 इज पॉजिटिव एंड D1 इज नेगेटिव एंड चार्ज जो आपका पॉजिटिव है, तो ये किस तरफ मूव करेगा? D1 की तरफ मूव करेगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस चार्ज पार्टिकल को क्या किया? एक्सिलरेट किया टुवर्ड दी D1. ओके, अब D1 जो डीज है ये तो मेटल है एंड होलो मेटल, एंड वी नो दैट इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0. तो इसका मतलब यहां पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नहीं लगेगा. अब इनसाइड द D1 इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है. ठीक है, अब क्या होगा? बट मैग्नेटिक फील्ड तो काम कर रहा है. मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है. सो ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल ट्रेवल एज इन द सेमी सर्कुलर पाथ. ठीक है, इस डीज के अंदर ये कैसा पाथ ट्रेवल करेगा? सेमी सर्कुलर. आप देख भी सकते हो इसमें. ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल दी सर्कुलर पाथ. और सर्कुलर ही क्यों किया? ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए. बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इनटू द प्लेन एंड चार्ज पार्टिकल मूव एट द राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पर मूव कर रहा है, और ये हमने एक्सप्रेशन लास्ट टू लास्ट वीडियो में निकाला था. व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव at right angle to the magnetic field, then it has circular motion or circular path. ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज है आपकी. मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल के बीच में मोशन में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है. सो इट हैज सेमी सर्कुलर पाथ इनसाइड दी D1. दोबारा सुनो यहाँ तक. वी पुट दी charge particle, heavy charge particle between the gap D1 and D2. ठीक है, and apply the electric field which is applied by the high frequency oscillator and the strong magnetic field by using the two electromagnet. Okay, now electric field accelerate this charge particle toward the D1. ठीक है, क्यों D1 की तरफ करेगा? D1 इज नेगेटिव एंड D2 इज पॉजिटिव हमने लिया. ओके, सो चार्ज पार्टिकल मूव्स टुवर्ड द D1. ओके, अब क्या होगा आपका? इनसाइड द D1 क्या है? डीज, मेटालिक डीज. इनसाइड द D1 डीज electric field become equal to 0 because we know that inside the conductor electric field 0. But there is magnetic field act on the charge particle inside this disk, and then charge particle moves semicircular path. अब क्या होगा? ये semicircular path travel करके यहाँ आ गया, then again it come in गैप बिटवीन दी डीज. फिर से कहाँ आ गया? ये गैप में आ गया. अब जैसे ही वो इन गैप्स के बीच में आएगा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा. सो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, बट नाउ पोलैरिटी ऑफ डीज आर रिवर्स. अब आपका D2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और D1 क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव हो जाएगा. बिकॉज वी यूज द ऑसिलेटर.
ठीक है, पहले आपका D1 नेगेटिव, D2 पॉजिटिव, अब सेकेंड टाइम आपका क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही अनदर हाफ साइकिल चलेगा तो ये आपका नेगेटिव और ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट। अब वो चार्ज पार्टिकल आपका किधर जाएगा, D2 की तरफ। सो क्या कहेंगे आप, आफ्टर the semicircular path inside the D1, it come outside and come into the gap between the D's, then again it accelerated by the electric field, but now the D's polarity are changed, so now positive charge particle goes toward the D2, right। अब फिर से वही प्रोसीजर होगा, अगेन इनसाइड द D2 इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, एंड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल ट्रेवल द सेमी सर्कुलर पाथ इनसाइड द D2Ds, and again it come into the gap and again electric field accelerate this charge particle. This process is take place again and again till it reaches the periphery. Periphery क्या होता है आपका, periphery is the boundary of या आप कह सकते हो कि external boundary of these D's, ठीक है, periphery, ठीक है। तो अब इस चार्ज पार्टिकल के पास एनफ एनर्जी आ चुकी है एंड दिस चार्ज पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड बाय द प्लेट्स, okay, so now this charge particle come out from the window W and then strike on the target T. This is the whole working of this cyclotron, okay। So when it come out from the window W, it acquire this so much large energy, okay, it acquire this sufficient large energy which we want for the bombardment on the atomic nuclei, okay। तो साइक्लोट्रॉन ने क्या किया, इस चार्ज पार्टिकल को हाईली एनर्जेटिक बना दिया, जितना हमें उसकी एनर्जी चाहिए थी, सफिशिएंट एनर्जी। तो ये सब क्या हो गई उसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन and the principle. All these things are in this diagram, okay। You can draw this diagram in your notebook. So now mathematical derivation. First of all, magnetic force Q V cross B, okay, so this will be equal to Q V B sin theta, okay। यहां पर हम लोग ले लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स Fm इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि वेक्टर होने के लिए यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, n यूनिट वेक्टर लगाना होगा, राइट। सो नाउ चार्ज पार्टिकल मूव एट द राइट एंगल, चार्ज पार्टिकल move at 90 degree with respect to B, B के 90 डिग्री एंगल पर, क्योंकि B आपका किधर लग रहा है, इनटू द प्लेन लग रहा है, ठीक है। तो इनटू द प्लेन है तो चार्ज पार्टिकल मूव कहाँ कर रहा है, इन द प्लेन कर रहा है, ठीक है। तो ये B के क्या हो गया आपका 90 डिग्री पर हो गया। सो Fm की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, Q VB sin 90 and then this will be equal to QVB, okay, and then centripetal force required to move the charged particle in the circular path, we can take centripetal force required to move the charge particle
to move the charged particle in circular motion, वो कितना होगा आपके पास mv² बाय में r। m क्या है आपके पास? मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, r is the radius of that circular path and v is the velocity of the charge particle. Then this fm क्या हो जाएगा आपके पास? qvb equal to mv² by r, and then 1v to 1v cancel, then you can find out the radius of this circular path. This will be equal to mv divided by में qb। तो सो यहां से आप क्या कह सकते हो कि r आपके पास मैक्सिमम कब होगा? देखो m कांस्टेंट, चार्ज पार्टिकल पर चार्ज कांस्टेंट, b कांस्टेंट, v क्या है उसकी? when it again and again move then it accelerated by the electric field, ठीक है? it means v आपका every time क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है and it increases again and again. so when the v maximum, तो r आपके पास क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। r मैक्सिमम जब है then it come out from the window and deflected by the deflected plates, right? तो अब v आपकी जब ये इस विंडो में से निकल कर आ रहा है पार्टिकल, तो उस वक्त उसकी v क्या है? मैक्सिमम है। v मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², वो भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो पार्टिकल की जो आपके पास v होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी, ठीक है? v is maximum when it come out from the window. okay, so r आपकी maximum when it come out from the window, v is maximum, kinetic energy is also maximum. okay, now velocity कितनी होगी? यहीं से ही आप velocity भी निकाल सकते हो। v equal to qb r divided by में m. okay, so this is the velocity of the charge particle. okay, now time period आपको पता है, time period, time taken by the charge particle to complete one cycle. तो time period आपके पास क्या हो जाएगा? अब आपको ये देखना है कि आप कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल रहे हो या सेमी सर्कल के लिए निकाल रहे हो। हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल रहे हैं। तो कंप्लीट साइकिल के लिए ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? जो भी इसका सर्कुलर पाथ होगा उसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई r डिवाइड बाय में v, राइट? पुट द वैल्यू r, then this will be equal to 2 pi divided by v into में r की वैल्यू आपके पास m, v divided by में qb, v से v cancel, so this will be equal to 2 pi m divided by qb, ठीक है? तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास? टाइम पीरियड की आ गई। यहीं से अब हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। रिप्रेजेंटेड बाय म्यू सी, राइट? और ये हमें पता है किसके इक्वल होती है? 1/t, ठीक है? तो वैल्यू पुट कर दो, देन दिस विल बी इक्वल टू qb अपॉन में 2 पाई m, राइट? एंगुलर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, एंगुलर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ये क्या हो जाएगी? ओमेगा सी, और ये किसके इक्वल होती है? 2 पाई म्यू सी, ठीक है? म्यू सी की वैल्यू पुट कर दो, देन 2 पाई इंटू में qb डिवाइड बाय में 2 पाई m, 2 पाई टू 2 पाई कैंसर, so this will be equal to, यहाँ m,
So this will be equal to QB divided by में M. So this is the angular cyclotron frequency. Kinetic energy suppose करो हमें निकालनी है, तो kinetic energy 1/2 mv square. तो 1/2 m v की वैल्यू हमने निकाली थी QBR डिवाइड बाय में m and whole square of this will be equal to 1/2 m q square b square r square divided by में m square. 1m to 1m cancel, so we have whole expression is given by this. ठीक है, यहां पर मैंने डायरेक्ट एक m से एक m कैंसिल कर दिए. यू कैन नोट इट. ओके, सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब आपके पास V मैक्सिमम जब आपके पास R मैक्सिमम, तो आपके क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2 Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर मैक्सिमम डिवाइड बाय में M. नोट इट. So now limitation of the cyclotron. Okay, for the limitation, so there are some limitation of this cyclotron. First limitation is it cannot accelerate the uncharged particle like the neutron. क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, then it will not be accelerated by the electric field. Second is it cannot accelerate the electron because electron has very small mass. ठीक है, अब जब उसका मास काफी ज्यादा स्मॉल है, तो जैसे ही हम उसको यहाँ पर गैप में रखेंगे बिटवीन द डीज, देन इट gain the kinetic energy, or you can say that it gain the high velocity within a short time, and then it come outside the window in a very small interval of time. तो जितनी सफिशिएंट एनर्जी उसको गेन करनी थी वो नहीं गेन कर पाएगा, और विद इन ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इट कम आउटसाइड फ्रॉम द विंडो. ठीक है. थर्ड लिमिटेशन इज दैट if we take the positively heavy charged particle like the ion, then they cannot accelerate to the limitless speed. Limitless speed means when the speed will become comparative to the velocity of light. और जब वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरेटिवली किसी पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाती है, देन वी यूज द मास वेलोसिटी रिलेशनशिप m इक्वल टू m नॉट डिवाइड बाय में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर. अब आपकी जो वेलोसिटी है वो अगर हम लेके चल रहे हैं कि अगर c के कंपैरेटिवली बन गए, तो उसका मास भी क्या होगा, चेंज होगा. अब मास जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसका मास भी क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा. जैसे जैसे उसका मास ज़्यादा होगा, तो जो आपके पास चार्ज पार्टिकल है, इट इज़ नॉट कैपेबल टू कम आफ्टर दिस सेमी सर्कुलर पाथ इनटू दिस गैप. वो इस गैप में अलाउ ही नहीं होगा आना. ठीक है. सो वी कैन से दैट हैवी चार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सिलरेटेड टू द लिमिटलेस स्पीड, क्योंकि जब तक वो इस गैप में नहीं आएगा वो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सिलरेट नहीं होगा. सो दिस इज द टॉपिक ऑफ योर सिलेबस. ठीक है. यूनिट आपकी थर्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट एंड द मैग्नेटिज्म. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज द पॉइंट ऑफ द एग्जाम एंड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो. सो जब भी ये आता है आपका 5 मार्क्स में आता है, CBSE बोर्ड हो भले ही HVSE, तो आप यहाँ पर लिख लेना इम्पोर्टेंट, इवन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके. सो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में. इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.